नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं बात करूंगी चेन्नई के बारे में। वो शहर जहां गर्मियों में अकाल और सूखा जैसी स्थिति होती है और जाड़ों में बाढ़ आ जाती है। तो क्यों होता है ऐसा और उसका सॉल्यूशन क्या है, उस समस्या का समाधान क्या है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। Today we'll talk about Chennai, the rain-rich yet water-thirsty city of India, which experiences drought-like conditions in summer, whereas flood-like conditions in winter, and what is the solution for that. So let me share my screen. Chennai, the rain-rich but water-thirsty city of India. We can still save it in 3 simple steps. So let's see what those steps are. Let's understand the basic problem. Rainwater, which percolates into the ground, is stored in natural reservoirs of water below the ground. These natural reservoirs are called aquifers. This water is pumped out by industries, mineral water plants, and individual households through borewells for their needs throughout the year. Most of the city has been concretized in Chennai. As a result, water drains off the surface and fails to percolate below the ground. When rainwater fails to percolate, aquifers are not replenished. However, they are constantly being depleted due to pumping out of rainwater. There are 4 main surface reservoirs or lakes filled with water for the city of Chennai, that is Red Hills, Cholavaram, Pundi, and Chembaram Pakkam. These are the surface reservoirs which are used to supply water to the city of Chennai. These reservoirs lose water at the rate of 5 million cubic feet every day due to evaporation. This loss is maximum in summer months when the temperature is high. So in summer, on the one hand, groundwater reservoirs or aquifers are constantly being depleted, and on the other hand, surface reservoirs lose water at a tremendous rate. The twin problems together cause water crisis in Chennai, and this is what happened in the year 2019. So this is what an aquifer looks like. This is ground level, trees are growing. This is the water table, and this is water. This is an unconfined aquifer, which is directly, whose topmost layer is the water table. Then comes the confined aquifer. The difference between confined and unconfined aquifer is that a confined aquifer usually has a thick layer of clay or rock above it, and it's not easy to dig through this confined aquifer. We'll talk about it in more detail in another video. So what happens? Water is being pumped out from this aquifer continuously in summer. But the recharge water, which happens when rainwater goes from us, collects and from streams, it enters the ground. And this recharge is not happening, but this pumping out is continuous in summers and throughout the year. अब इसी बात को मैं जरा अंग्रेजी में दोहरा दूं कि जब बारिश का पानी जमीन के नीचे जो रेजर्वोयर बने होते हैं उनको एक्विफर कहते हैं। बारिश का पानी जमीन से नीचे जाता है और एक्विफर में स्टोर होता है और कॉन्स्टेंटली हम हर घर से, इंडस्ट्री से जो पानी जमीन से निकाला जाता है वो इसी एक्विफर से निकाला जाता है। तो बारिश का पानी एक्विफर में जाना चाहिए, लेकिन चेन्नई में ये नहीं जाता है क्योंकि सारे शहर में मकान बना दिए और मकान से सड़क तक की जो जमीन होती है उसको भी पक्की करा दी गई। तो कहीं कच्ची मिट्टी है ही नहीं कि बारिश का पानी अंदर जा सके। और जब बारिश का पानी अंदर नहीं जा पाता तो एक्विफर को पानी दोबारा नहीं मिलता है, जबकि कॉन्स्टेंटली उससे बाहर निकाल रहे हैं आप। इसके अलावा चेन्नई शहर में 4 बड़ी झीलें हैं जिसमें पानी स्टोर होता है। रेड हिल्स, चोलावरम, पूंजी और चेम्बरम पक्कम, और इनसे शहर को पानी की सप्लाई होती है। पर गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पानी 5 मिलियन क्यूबिक फीट, ये बहुत ज्यादा पानी है, ये इवेपोरेट होता है हर रोज उन चारों रेजर्वोयर से। तो पानी जो ओपन एयर रेजर्वोयर है उससे भी गर्मी में उड़ के वाष्प बन रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो उनका भी लेवल नीचे आ रहा है। एक्विफर्स का लेवल ऑलरेडी गर्मियों में नीचे आ रहा है क्योंकि रिप्लेनिश ही नहीं हुआ। तो पानी हर जगह कम हो रहा है और उसकी वजह से, इन दोनों समस्याओं की वजह से जो है गर्मी में सूखे की अकाल जैसी स्थिति हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। एक्विफर क्या होता है ये समझाने के लिए डायग्राम देखिए। ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, ये वाटर टेबल है। ये एक अनकन्फाइंड एक्विफर है जिसका टॉप मोस्ट लेयर वाटर टेबल होता है। फिर कन्फाइंड एक्विफर,
और कन्फाइंड एक्विफर और अनकन्फाइंड एक्विफर में बस इतना ही फर्क है कि ये एक लेयर होती है मोटी, अक्सर क्ले की या कभी कभी रॉक्स की, जो कन्फाइंड एक्विफर के ऊपर होती है, और इनके को भेदना, कन्फाइंड एक्विफर को भेदना आसान नहीं होता। तो ये एक्विफर से पंपिंग बोरवेल्स लगा के हमेशा पानी निकाला जा रहा है, घरों के द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा, मिनरल वाटर प्लांट्स के द्वारा भी पानी निकाला जाता है, जबकि जो रिचार्ज होना चाहिए स्ट्रीम्स के थ्रू जमीन के अंदर, वो नहीं हो पाता है चेन्नई में। तो यही समस्या है। अब इस समस्या का पार्ट 2 कि बाढ़ भी आ रही है, एक ही शहर में जहां सूखा भी है वहां बाढ़ भी आ रही है, तो वहां क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट 2 ऑफ द प्रॉब्लम। Chennai experiences monsoon in the winter months of November, December, and January, and this is called the western monsoons, the winter monsoon, or the retreating monsoons. Thus, summer months are water-starved, but winter months experience a flood-like situation. Why? The same reason that causes a water crisis in summer causes floods in the winter: the failure of rainwater to percolate below the ground. When rainwater fails to seep below the ground, it accumulates on roads, water bodies, and enters homes in extreme cases. This is what happened in November 2015. तो जब बारिश का पानी जमीन के भीतर नहीं जा रहा, तो वो सड़कों पे आ रहा है, वो घरों में घुस सकता है, वो नदियों में जाके बाढ़ की स्थिति कर देगा, और फिर नदियों का पानी घरों में घुस जाएगा। तो जमीन का पानी जब अंदर नहीं जाता है तो दोनों ही समस्याएं होती हैं। समस्या का कारण क्या है? मैक्सिमम अनप्लान्ड and even illegal construction on land to provide for the growing population of the city, that is construction in floodplains. चेन्नई शहर में एक तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सन 2020 में चेन्नई शहर की आबादी 1.9 करोड़ थी। 2021 में इस शहर की आबादी 1.12 करोड़ हो गई। तो एक साल में ही आबादी जो है वो बहुत बढ़ गई है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा मकान बनने की जरूरत पड़ गई। तो जमीन पे बहुत ज्यादा मकानों की जरूरत पड़ी और बहुत ज्यादा मकान बन गए। इसके अलावा फ्लड प्लेन्स में नदी के किनारे से 500 मीटर की दूरी तक की जो जमीन होती है वो फ्लड प्लेन होती है, और वहां पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई मकान, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज कुछ भी नहीं बनना चाहिए। पर उस तरह की जमीनों पर भी चेन्नई में मकान बने हैं। तो इसकी वजह से जैसे ही नदी में पानी का एक्सेस फ्लो होता है, तो वो जो पानी है वो अगल बगल के मकानों में घुस जाता है। फिर लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, जिन्होंने उन जमीनों पर मकान बनाए हैं उनका दोष है, और सरकार का दोष है, क्योंकि जमीनों पे मकान बनने दिए सरकार ने। Concretization of setback areas. Setback areas are the empty area between building and the road. तो ये जो बिल्डिंग और रोड के बीच की जो खाली जमीन होती है, जिसमें अक्सर लोग लॉन वगैरह उगाते थे, उसको भी पक्की करा दी गई। तो अब वो वहां से भी पानी नीचे नहीं जा रहा है। तो एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की छत पक्की है, उसके आसपास की जमीन पक्की है, सड़क पक्की है, तो वो सारे पक्की जमीनों का पानी जो जमीन के अंदर नहीं जा रहा है, वो सब कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो वो सड़कों पे आ जाता है, वो घरों में भरता है, तो आप कहते हैं बाढ़ आ गई। Provisions to drain out water off the surface, but no or minimal scope for rainwater to percolate. और यही जो मैंने अभी कहा कि सरफेस से पानी को निकालने की जगह है, लेकिन जमीन के भीतर जाने की कोई जगह नहीं है। तो अगर आपके ड्रेन्स, जो चेन्नई के जो ड्रेन्स है वो एनीवेज पुराने हैं, पर अगर वो सही भी हो जाए, सब कुछ सही भी करा दिया जाए, तो कितना पानी है जो पूरे शहर का पानी सिर्फ नालों में जा सकेगा और जमीन के भीतर कुछ भी ना जाए। तो कभी ना कभी पानी को जमीन के भीतर जाने के प्रोविजंस आपको करने पड़ेंगे। Rapid expansion of the city, making the problem worse by constructing concrete jungles over more and more land everywhere. Just as I mentioned earlier, city is expanding rapidly and more construction is happening everywhere, and less scope for groundwater to percolate, and more floods. So what's the solution? Rooftop rainwater harvesting is the solution. So rooftop rainwater harvesting along with surface reservoirs. There should be a mandatory law to implement rooftop rainwater harvesting at every household and apartment complex, both new and existing, not just on temples, government buildings, and implementing this law as strictly as the government collects property tax. तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सरकार को करना ही पड़ेगा। सरकार के पास 4 बड़े सर्फेस रिजर्वॉयर्स हैं, झीलें हैं। Mandatory law to implement rooftop rainwater harvesting at every house. ना सिर्फ सरकारी बिल्डिंग्स पर कि हर घर में, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मंदिरों पे, जहां जहां घर हैं, ऑफिस हैं, वहां सरकार को, वहां लोगों को
मैंडेटरी रेन वाटर रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, मतलब छत का पानी पूरा जमीन में जाए, ऐसी सुविधा, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। और ये होगा एक स्ट्रिक्ट कानून लाके, एक मजबूत कानून लाके, नियम कि हर किसी को, हर घर को, मंदिर को, सरकारी या गैर सरकारी संस्थान, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स को ये करना है। और ये करने के लिए, इसको जल्दी करने के लिए सरकार इस कानून को इंसेंटिवाइज कर सकती है, इंसेंटिवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विद अ रिबेट इन प्रॉपर्टी टैक्स फॉर एवरी हाउस होल्ड दैट डज इट। और सरकारी संस्थानों पर तो ये करना आसान होगा, लेकिन घरों में इस चीज का को किया जा सके, इसके लिए सरकार उसको प्रॉपर्टी टैक्स से जोड़ सकती है कि अगर आप अपने घर पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स में हम इतना % रिबेट देंगे। अगर ये एक लालच लोगों को दिया जाएगा तो लोग इस काम को जल्दी करेंगे। इसके अलावा कंट्रोल इलीगल कंस्ट्रक्शन इन फ्लड प्लेन्स, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है फ्लड प्लेन्स में, जो चेन्नई में बहुत है, नदी के 500 मीटर तक की दूरी से 500 मीटर तक की दूरी तक कोई घर मकान या कुछ भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उसमें बाढ़ की समस्या हमेशा होगी। पर वैसी जगहों पर चेन्नई में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हुए हैं, और उससे एक तो नदी के आसपास जो एरिया है उसको भी आपने भर दिया, तो वहां से भी पानी जो है बारिश का जमीन के अंदर नहीं जा रहा है। दूसरा, नदी में जैसे ही बाढ़ आएगी तुरंत आपके घर में घुसेगा। तो ये 3 स्टेप्स करने होंगे। पहला, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलॉन्ग विद सरफेस रेजर्वायर्स, मतलब आपके जो झीलें हैं, तालाब है, जहां पानी आप स्टोर करते हो बारिश का। उसके अलावा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में एक सख्त कानून लाके लागू करवाइए। इस कानून को प्रॉपर्टी टैक्स से जोड़ दीजिए। अगर आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको हम प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट देंगे। तीसरा, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कि फ्लड प्लेन्स में है और भी जगह पे चेन्नई में है, उनको रोकिए। तो इन 3 स्टेप्स से चेन्नई का जो समस्या है, बाढ़ की भी और सूखे की भी, ये दोनों बहुत ही आसानी से सुलझ सकती है। और इसके साथ ही जो बढ़ती आबादी है उसको पानी की समस्या आगे कभी नहीं होगी, क्योंकि आबादी हमेशा बढ़ती जाएगी। अगर आप 1 करोड़ लोगों के लिए आज सारे प्रावधान कर देंगे, अगले साल आपकी आबादी 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे? इसलिए आपको ये हर घर के लेवल पे ये जो सुझाव दिए गए इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और अगर सरकार मेरी बात सुन रही है तो सरकार एक हिसाब करे कि हर साल बाढ़ राहत कार्य में या सूखे के रिलीफ में सरकार कितना पैसा खर्च करती है। वो पैसा और इस जो जरूरी कानून है इसको लागू करने में जो पैसा खर्च होगा, उन दोनों में कितना फर्क है। जिस दिन सरकार ये फर्क समझ जाएगी उस दिन इन सुझावों को सीरियसली लेगी, और आज नहीं तो कल सरकार को ये सुझाव, ये कानून लाने ही पड़ेंगे। आई होप व्हाट वी सो एक और जरूरी बात, so if government calculates the amount of money spent on flood and drought relief every year versus the amount of money which will be spent in implementing these laws, the government will take this seriously. What would an ideal rainwater harvesting system look like? So this is just a diagram. I'm not very good at drawing, but this is a diagram of a building. So rainwater from the roof of the building comes here, and through this pipe it goes under the ground. This is tank 1 below the ground, tank 2 below the ground. Tank 1 is a small tank, say 5,000 liters. Tank 2 is a bigger tank, say about 15,000 liters. The total capacity of these 2 tanks together is 20,000 liters. And the extra water, which has not gone into these 2 tanks and is overflowing, goes to join the water table. And this is a well which goes to the water table. This well is usually filled with pebbles and gravels so that no dead animals or plants or leaves, they go to the water table, just pure water. तो ये एक आइडियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ये एक छोटा टैंक है 5,000 लीटर कैपेसिटी का, बड़ा टैंक है 15,000 लीटर कैपेसिटी का। और जब पानी इन दोनों, पहले पानी छोटे टैंक में भरेगा, फिर बड़े टैंक में भरेगा, और जब इन दोनों में भर के भी पानी एक्स्ट्रा होगा तो ये पानी ये इस कुएं से होता हुआ सीधे वाटर टेबल को ज्वाइन करेगा। और इस कुएं को अक्सर मोटे रेत से या पत्थरों से भर दिया जाता है ताकि कोई भी पत्ती, मरे जानवर, पेड़ पौधे या किसी भी तरह का प्रदूषण इसके अंदर ना जाए। और ये छत से सारा पानी और आसपास से सारा पानी इधर कलेक्ट होता है। तो ये एक आइडियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। आई होप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में और चेन्नई शहर की समस्याओं के बारे में जो आज हमने बातचीत की वो आपकी समझ में आ गया होगा। विद दिस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।